Hello students, today we'll start with thoughts of neoclassical theory. In previous lecture what we had studied was first of all we had introduction of principle of management, then we went with meaning of principle of management, and then we learned concept of principle of management, then nature of principle of management, which consists of universal acceptance, flexible general guideline based on human behavior contingency. Then we learned importance of principle of management, that is increase in managerial efficiency, maximum usage and effective administration of resources, helpful for scientific and logical decision, to cope up with changing business environment, to fulfill social responsibility, useful for research, training and development. And then we have studied the first theory thought of management, that is classical theory. And today I'll begin with neoclassical theory, that is thoughts of neoclassical theory. अब देखो, जब भी हम लोग किसी चीज में जब उसका नया फॉर्मेशन आता है, जब उसका नया मॉडल आता है, एज फॉर एग्जाम्पल ले लेते फोन्स, मोबाइल फोन्स में आए दिन नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। तो वो जो मॉडल्स होते हैं, तो वो जो पहला जो फोन होता है उसमें कोई चेंज की जरूरत होती है, या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, या तो उसमें कोई भी ऐसे इम्प्रूवमेंट या चेंज को ऐड किया जाता है जो पहले वाले में नहीं है, जो पहले वाले में लूप होल है, उसे कंसीडर करके नया मॉडल बनाया जाता है। इस तरीके से जो जो लिमिटेशंस हमारी क्लासिकल थ्योरी में थी, वो सारी लिमिटेशन न्यू क्लासिकल थ्योरी में कवर कर दी गई। ठीक है। To remove some limitation of thoughts of classical theory, some management experts made changes and established new approaches, which is called thoughts of neoclassical theory. At the end of 19th century, after industrial revolution, format of units, industries was changed and a need was arise um, फॉर अ न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जब हमारे वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब हमारे वहाँ पे 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो नई इंडस्ट्रीज, नए फॉर्मेट, सब कुछ आया। तो उसके साथ साथ हमें नई थ्योरीज की जरूरत पड़ी। In the start of 20th century, Australian industrial psychologist Alton Mayo theory of Hawthorne gave a new birth to behavior-oriented thought. To Alton Mayo is called promoter of thought of neoclassical theory. एल्टन मायो जो थे वो प्रमोटर माने जाते थे। हियर इट इज एल्टन मायो, वो इज कॉल्ड प्रमोटर उन्होंने उस थॉट को प्रमोट किया, उस थॉट को आगे बढ़ाया। कौन सा थॉट था वो? थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी। थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी emphasizes मतलब इंपॉर्टेंस देता है अपॉन बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर फॉर मैनेजमेंट। Additions were made to thoughts of neoclassical theory like informal organization, एक informal organization बनाया गया। Human behavior, human relation, inspiration are elements based on thought of classical theory. Alton Mayo, Herzberg theory, आपको Herzberg theory आएगी, Rensis Likert theory आएगा, Chris Argyris, McGregor, Maslow's theory, one of the most important and very interesting theory was of Maslow, are main contributor in these thoughts. In branches of thoughts of neoclassical theory, human relations or human behavior thought, social mechanism thought and social arrangement thought are main। यहाँ पे हम कौन सी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को महत्व दिया जाता है, सोशल मैकेनिज्म को महत्व दिया जाता है, हमारा सोशल अरेंजमेंट, मतलब बेसिकली एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर इज बीइंग एम्फसाइज्ड ओवर हियर, इज बीइंग प्रमोटेड ओवर हियर। ओके, जिसके अंदर सबसे पहला है बिहेवियर रिलेटेड। बिहेवियर रिलेटेड में जैसे जो मैस्लो की थ्योरी है, जिसके मैं बारे में आपको बता रही हूँ, उन्होंने हमारी जो नीड्स है, हमारे जो जरूरत है, उन्हें एक अलग अलग लेवल पे
क्लासिफाई कर दिया, हमारी नीड्स को क्लासिफाई कर दिया है, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, इस तरीके से अलग सोशल नीड्स, इस तरीके से हमारी नीड्स को अलग अलग स्टेजेस दे दिए गए कि हमें पहले कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। इंसान पहले बेसिक नीड्स की तरफ जाता है, एक बार बेसिक नीड्स आता है तो वो सिक्योरिटी ढूंढता है। इन सब चीजों की अलग अलग स्टेजेस डिवाइड कर दिए गए हैं मैस्लो की थ्योरी में। तो वो एक बिहेवियर रिलेटेड और बिहेवियर रिलेटेड बात करता है, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर बात करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। जाहिर है हम लोग ने ये बहुत दफा पढ़ा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा काम है कि आप किसी से काम करवा रहे हो। As Professor Ulrich said, you manage your man will manage rest of all. This is one of the most famous proverb that you manage your man will manage rest of all. मतलब अगर आप अपने एम्प्लॉय को ध्यान रखोगे, अगर आप अपने एम्प्लॉय का केयर लोगे, तो आपका एम्प्लॉय आपकी बाकी सारी चीजों का, आपकी बाकी सारी परेशानियों का ध्यान रख लेगा। ठीक है, likewise employee or a person is having an important place in it. Since the management is being done by a person, management study become a study of inter-human relation. Basically मैनेजमेंट की जो स्टडी है, जो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक इंसान करता है और वो ह्यूमन रिलेशंस को पढ़ने की कोशिश करता है। मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन। हेंस बिहेवियर रिलेटेड एम्फसाइज ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। आप आपकी जॉब से कितने सेटिस्फाइड हो, आप कितने खुश हो अपने काम से। एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। आप उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करो, आप उनके काम इंक्रीज करो, उनसे उनके काम में जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? उनके साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए। कौन सी चीज ऐसी है जो आपके एम्प्लॉय को खुश कर रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कंसेप्ट लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन। देखो, जैसे हम जिस एनवायरमेंट में काम करते हैं, जिस एनवायरमेंट में काम करते हैं, वो एनवायरमेंट में हमें लोग चाहिए। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, हम सोशल एनिमल है, हमें इंसानों की जरूरत है। अगर आप जहाँ पे जा रहे हो वहां पे कोई आपसे बात नहीं कर रहा, कोई आपसे सही से बिहेव नहीं कर पा रहा, या आपके हर आइडिया को इनकरेज नहीं किया जा रहा, रादर देन उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आप, हो सकता है कि वो काम जो आप कर रहे हो वो आपको बहुत मजा दे रहा है, पर वो सोशल एम्फेसिस, जो सोशल क्राइटेरिया है, जो सोशल एनवायरनमेंट है आपके आसपास, वो आपको खुश नहीं कर रहा, वो आपको काम नहीं करने दे रहा, वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, आपका काम आपको पसंद हो सकता है, पर आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मोटिवेशन है, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर इंक्लूडेड इन बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स। कौन सी चीज आती है? देखो, ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़े, तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होती है उन्हें सॉल्व किया जाए। Since this approach is psychological, it seems that economic parameter has been neglected. क्योंकि यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस जो है वो साइकोलॉजिकल है, तो पैसे के रिलेटेड चीजें जो है वो निग्लेक्ट कर दी गई है, नजरअंदाज कर दी गई है। Some writers logically say the human relation cannot be maintained at the cost of productivity, which is main limitation of this approach. जैसे कुछ राइटर्स क्या कहते हैं कि आप ह्यूमन रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन की पर यील्ड है उसके कॉस्ट पे आप, या फिर आपके बिजनेस के कॉस्ट पे, या आपके प्रॉफिट के कॉस्ट पे आप ह्यूमन रिलेशन नहीं अपना सकते हो, और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आज भी ये इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस को एक एज अ डिसिप्लिन अपनाया जा रहा है, धीरे धीरे उसे प्रोफेशनल कोर्स बनाया जा रहा है, उसमें अलग अलग डिसिप्लिन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे फिर वो साइकोलॉजिकल हो या हमारा सोशल स्टडीज हो, स्टेटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर्स हो, या आईटी सेक्टर हो, इन सारी चीजों को कंबाइन कर दिया गया है हमारे मैनेजमेंट में। ठीक है, a change was occurred in the format of industry and business units after 1960.
As a result, need of special approach of management was arise. As management is not containing to only business unit, special professional class of managers were emerged, where advocacy in these thoughts of psychological, social studies, statistics, mathematics, and computer information technology were made. Management gurus like Kunz O'Donnell, George R. Terry have contributed in this thought. Moreover, Peter F. Drucker, William Auchi, and C.K. Prahlad have also contributed in this thought. When you study MBO, you'll get to know about Peter F. Drucker. Okay, let's learn our principle of scientific management, which is given by Taylor. Frederick Winslow Taylor. I repeat, Frederick Winslow Taylor has given principle of scientific management. Frederick Winslow Taylor was American. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो थे वो अमेरिकन थे और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी और वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज करने का जिक्र किया, जिन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के बारे में बात की, जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात की और उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में डाली। 20th सेंचुरी की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक मानी जाती है मैनेजमेंट पे 20th सेंचुरी की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक अगर कोई है तो वो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, दैट इज FW टेलर। टेलर ने दोनों तरीके से काम किया है। ही स्टार्टेड हिज वर्क एज अ वर्कर। उन्होंने लो लेवल पे मतलब एज अ लोअर लेवल पे उन्होंने वर्कर की तरह काम किया है और क्योंकि वो काफी टैलेंटेड थे और अलग अलग कंपनीज में काम करते करते फिर उन्होंने एज अ मैनेजर भी काम किया है। वो उनका मानना ये था कि जनरली किसी भी कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री में दो वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, दो क्लास ऑफ वर्कर्स, दो क्लास हो जाते हैं। एक होता है ओनर्स और दूसरा होता है वर्कर्स। ओनर्स जो है उसमें हमारे आते हैं कि मैनेजर्स आ जाते हैं और वर्कर्स जो है वो लोग होते हैं जो लो लेवल पे काम करते हैं, जो बेसिकली लेबर माने जाते हैं। ठीक है, अब वर्कर को क्या होता है, वर्कर का सबसे ज्यादा उसका ध्यान, उसका मेन मोटिव सिर्फ ये होता है कि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाए, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रॉफिट और वेल्थ कमाए। और जो वर्कर होता है उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना वेजेस इंक्रीज हो और जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। अब यहाँ पे दोनों के जो मोटिव है, दोनों के जो गोल है वो अलग है। ओनर का है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और वर्कर का है कि ज्यादा से ज्यादा उसको जॉब सेटिस्फेक्शन और वेजेस मिले। जब दो अलग अलग हिस्से होकर, जब आप एक ना होकर दो अलग अलग इंसान, दो अलग अलग व्यक्ति बनकर सोचोगे, सपोज करो कि आपको एक टीम में डाला गया और एक टीम में आपका जो मेन गोल है वो टीम को जिताना नहीं है, रादर देन अपना खुद का नाम करना है, तो कभी भी गेम नहीं जीत सकते, तो कभी भी आप शायद वो टीम नहीं जीत सकती। ठीक है, इसी तरीके से वो बोलते हैं कि जब इंडस्ट्री में जो एक टीम है वो टीम में दो ग्रुप्स है, एक होता है वर्कर्स का और दूसरा होता है ओनर्स का। जहाँ पे ओनर्स का जो गोल है वो गोल इस तरीके का है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए और जो वर्कर्स का जो गोल है वो ये रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वेजेस कमाए और जॉब सेटिस्फेक्शन कमाए। अब जो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स थी, जो पहले पुराने टाइम पे जो चीजें फॉलो की जाती थी वो ये था कि वर्कर्स के पास बहुत ज्यादा काम करवाना, जैसा ओनर बोले वैसा काम करते जाओ बस, जैसा वो नचाए आप वैसे नाचते जाओ। ये ट्रेडिशनल मेथड था, जैसा ऑर्डर उन्हें मिला है वैसा ऑर्डर हमें फॉलो करना है। और जो ये ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड था उसे हम कहते थे रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या था? I repeat, rule of thumb. I repeat, RULE, rule of THUMB, thumb. जो ये कहता है कि आपको जैसे ऑर्डर्स मिलेंगे वैसे काम करना है। मतलब मैनेजर जिस भी तरह का ऑर्डर देगा वैस उस तरह कैसे हमें काम करना है, हमें मतलब वर्कर्स को काम करना है। ठीक है, दैट वाज रूल ऑफ थंब मेथड। लेकिन
फिर हमारे वहां पे टेलर ने साइंटिफिक अप्रोच अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ थंब मेथड को रिप्लेस कर देना चाहिए साइंटिफिक मेथड से। समझ में आया? I'll read it for you, students. Frederick Winslow Taylor was an American mechanical engineer, an important contributor in classical thoughts. In starting phase, he joined as apprentice in a factory. After contributing in various companies, he became manager in Bethlehem Steel Company. During this period, F. W. Taylor for the first time presented principle of scientific management, and hence he is known as father of scientific management. Hence, he is known as father of scientific management. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है. एफ.डब्ल्यू. टेलर इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्योंकि उन्होंने रूल ऑफ थंब को साइंटिफिक मेथड से रिप्लेस कर दिया गया. इसीलिए उन्हें माना जाता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है एज scientific father of scientific management. Okay. In any business unit, normally two classes are important. There is owners and workers. Owner means manager whose main purpose is optimization of profit and wealth, as I already discussed with you. While employees are interested in higher wages and job satisfaction. As a result, conflict arises in maintaining harmony between two groups. Frederick Taylor challenged this traditional method and started to develop a new method. Workers were asked to do work as per the order. I repeat, underline this line. Workers were asked to do work as per the order and circle as per the order. एज पर ऑर्डर को सर्कल कर दो. इन ट्रेडिशनल मेथड, और वो ट्रेडिशनल मेथड को बोलते हैं रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब को रेक्टेंगल में डाल दो, एक बॉक्स में डाल दो. देयर वाज नो वॉइस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को कोई सुनता नहीं था. डोमिनेंस ऑफ ओनर्स इंक्रीज्ड and this time Taylor presented new concept with scientific approach instead of rule of thumb, which is known as scientific management. उसे हम कहते हैं scientific management. Okay. I hope it is very much clear to you all students. जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी जहाँ पे वर्कर्स को ऑर्डर के मुताबिक काम करना था, वो मेथड को रिप्लेस कर दिया गया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ जो हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे. एफ.डब्ल्यू. टेलर खुद एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं. उन्होंने एज अ वर्कर भी काम किया है, ठीक है, एज अ अप्रेंटिस काम किया है एक फैक्ट्री में, और फिर वो बैथलेम स्टील कंपनी में मैनेजर बन गए थे. और फिर कौन सी कंपनी में? बैथलेम स्टील कंपनी में वो मैनेजर बन गए थे. और फिर उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि वर्कर्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता नहीं है. मीनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज इन फैक्ट्री. ये एक मेंटल रेवोल्यूशन है, ठीक है. इट इज अ मेंटल रेवोल्यूशन ऑन अ पार्ट ऑफ जो वर्कर्स जो है उनके लिए, ठीक है. The task, duties, colleagues and owner. It's totally mental revolution towards the task. आपके टास्क के साथ, आपकी ड्यूटीज के साथ, आपके कलीग्स के साथ, and owners. Definition. Taylor defined exactly management as, जैसा हम हमेशा करते हैं, we'll break down the definition. Knowing exactly what you want your man to do. ये जानना कि exactly हम क्या चाहते हैं, हमारा वर्कर हमारे लिए क्या काम करे. Knowing exactly what your man what you want your man to do. Go with a rhyme. Knowing exactly what you want your man to do. And then see, the other part says to it. और फिर उसको ध्यान दो, उसके ऊपर नजर रखो. पहले तो ये जान लो कि आपको exactly क्या चाहिए, आपका वर्कर exactly कैसे काम करना चाहिए, और फिर दूसरा पॉइंट है कि फिर देखो कि वो काम ढंग से और सही तरीके से हो रहा है, ठीक है. Then third part goes it that they do it in the best and cheapest way. क्या ध्यान रखना है कि आपका वर्कर इस तरीके से काम करे जो काम सही तरीके से हो और सस्ते में हो, ठीक है, जो ज्यादा महंगा ना हो, जो सही हो और सस्ते से हो. उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट.
किस तरीके से डेफिनेशन याद रखेंगे? नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। पहले तो वो जानो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपका वर्कर क्या करे आपके लिए, एंड देन सी टू इट। और फिर ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो? दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चिपेस्ट वे, कि वो जो भी करे वो बेस्ट करे और सबसे चिपेस्ट वे में करे। ठीक है, rhyme the definition to learn it well. First of all, we'll break, then we'll rhyme. We have break this definition into three parts, and now we'll be rhyming it. Knowing exactly what you want your man to do, knowing exactly what you want your that they do it in the best and cheapest way. I repeat for you, knowing exactly what you want your man to do, then see to it that they do it in best and cheapest way. I'll repeat it again, knowing exactly what you want your man to do, and then see to it and that they do it in best and cheapest way. I hope it is very much clear to you all. Definition इसी तरीके से लिखनी चाहिए. Definition में कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकते. देखो, you can't make definition on your own. Definition should be written as it is. क्योंकि definition जो है आप समझ सकते हो, आप उसे डीप वे में समझ सकते हो. जैसे मैंने कहा ना कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली आपके वर्कर से क्या चाहिए. फिर आप उसका ध्यान रखो कि वो जो भी तरीके से काम कर रहे हैं वो तरीका एकदम बेस्ट होना चाहिए और सबसे आसान होना चाहिए, और सब मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो. इट शुड बी इन द चिपेस्ट वे. ओके, तो ये जानना बात अलग है, उसको समझने की बात अलग है. अगर आप उसको समझ लेते हो तो आपके लिए लर्न करनी बहुत आसान हो जाती है. पर डेफिनेशन में यू कांट skip the words, you can't gulp down the words, or you can't write it on your own. आपको जैसा डेफिनेशन दिया गया है बिल्कुल वैसे ही लिखना पड़ेगा. Since Frederick Taylor himself was an engineer, he found that till workers will not get higher and motivated wage rate, they will not work efficiently. जहां तक आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा वहां तक आप मेहनत से काम नहीं करोगे. Without getting work done in traditional way to get higher productivity, scientific method should be used to have lower production cost. I repeat, scientific method. अगर आपको देखो, आप जब काम करते हो, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करते रहोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी और आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है, जबकि साइंटिफिक मेथड जो है उससे आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकता है. आपका प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है. As manager do not lower wage rate and employees may not work, he suggested adopting scientific approach. क्या कह रहे हैं? क्या मैनेजर जो है डू नॉट लोअर वेज रेट, मैनेजर को वेज रेट ना कम करना पड़े और एम्प्लॉयज में नॉट वर्क और एम्प्लॉयज काम ना करे. ही सजेस्टेड अडॉप्टिंग द साइंटिफिक अप्रोच. देखो, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से काम करते रहे ना तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, साथ में प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी. अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, इसीलिए हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज करनी जरूरी है. As a challenge to traditional approach, he presented scientific management as revolutionary thought, where below stated matters were considered. तीन चीजें कंसीडर की गई एक चैलेंज की तरह. Each worker should be assigned work as per his mental and physical ability. हर इंसान को काम इस तरीके से मिलना चाहिए जो उसकी मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी के साथ मैच करे. आप ऐसे इंसान को, जैसे आप एक सपोज करो, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, जैसे कोई वर्कर है जो आपके साथ बहुत सालों से आपकी कंपनी के साथ जुड़ा है और बहुत सालों से अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो फिर जब उसकी आईसाइट कमजोर हो रही है या उसका हियरिंग एड कमजोर हो रहा है या अब उसके पैर इतनी तेजी से नहीं काम कर रहे, तब आप उसको कंपनी से निकालने की बात नहीं करोगे या आप उसके वेजेस लो करने की बात नहीं करोगे, पर आप उसको एक ऐसा वर्क असाइन करोगे, आप उसको ऐसा काम असाइन करोगे जहां पे उनकी इस्तेमाल हो, उनकी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल हो, उनकी फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल हो. समझ में आया? तो आपकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी का यूज हो. ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे उनको कम फिजिकल एफर्ट्स डालने हो और उनको मेंटली वो ज्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ज्यादा है, तो मेंटली उनका काम ज्यादा चले और फिजिकल वर्क कम से कम हो जो एजेड है. और जो यंग एज ग्रुप है, जो बहुत ज्यादा
टेक्नोलॉजिकल वेल इक्विप्ड है, जिनके पास बहुत एनर्जी है, अभी वो भाग दौड़ कर सकते हैं, अभी वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, उन लोगों को ऐसा काम सौंपा जाए, ऐसा काम दिया जाए जिसमें फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ मेंटल एबिलिटी दोनों का इस्तेमाल हो, और फिजिकल एबिलिटी जितनी ज्यादा हो सके उतनी इस्तेमाल हो, क्योंकि वो दौड़ सकते हैं, वो भाग सकते हैं, क्योंकि दे आर द यंग ब्लड। ओके, तो हर इंसान को इस तरीके से काम मिलना चाहिए जो उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी मैच करे। Each worker should be instructed to perform maximum work as per the category. हर वर्कर को ये करना चाहिए कि भाई जितना ज्यादा काम कर सकते हो उतना ज्यादा काम करो, ठीक है। मैक्सिमम वर्क एज पर द कैटेगरी, आपको किसी भी कैटेगरी में डाला गया है उस कैटेगरी के मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा काम करो, मतलब आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दो, आप अपना बेस्ट रख दो वहां पे। Each worker doing efficient work rapidly should be paid more wage, more than 30% to 100%. हर इंसान जो अच्छे से काम करता है उसे ज्यादा काम, उससे ज्यादा पैसा दो। अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसे पैसा भी ज्यादा दो। दैट इज मोर देन 30% टू 100%। आप उसको 30% भी इंक्रीज कर सकते हो और उसका 100% भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर इंसान बहुत मेहनत से काम कर रहा है तो आप उसके वेजेस भी उतनी ही तेजी से इंक्रीज करो। तीन चीजें को चैलेंज करा। सबसे पहला कि आप इस तरीके से काम दो जो उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी मैच हो। सेकेंड, वो कह रहा है कि मैक्सिमम वर्क दिया जाए एज पर द कैटेगरी। और थर्ड, कि इस तरीके से वेजेस पे किए जाए, इस तरीके से उन्हें वेजेस दिए जाए कि अगर उनका काम ज्यादा है तो उन्हें पैसा भी ज्यादा मिले। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ, Principle of Scientific Management. Frederick Taylor's scientific approach was a revolutionary act. He was far from traditional methods so that workers and owners may work with the harmony. He provided scientific management principle which are as under. सबसे पहला scientific method. To do work, scientific method should be adopted, abandoning the traditional method and thinking how best work can be done by analyzing work scientifically. आप कोई भी काम को एनालाइज करो कि किस तरीके से बेहतर तरीके से वो काम करा जा सकता है। या तो आप उसमें बहुत ज्यादा देखो, दो तरीके से काम हो सकता है। एक होता है वर्किंग लाइक अ डोंकी और बीइंग अ हॉर्स एंड डूइंग अ स्मार्ट वर्क। आप कौन से तरीके से काम कर रहे हो, आपको काम पहचानो, वो काम पहचानने के बाद उसका साइंटिफिकल व्यू पॉइंट देकर उसे एक बेहतर तरीके से करो, उसे बेस्ट तरीके से करो। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग करो ताकि आप सही से प्लानिंग करोगे तो उसमें कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, सही तरीके से काम होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा, और काम प्लान तरीके से हो जा रहा है या प्लान तरीके से आप काम कर रहे हो तो उसमें काम सही तरीके से होगा और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। इट शुड बी लाइक एक्सपर्ट्स मेक प्लान एंड वर्कर्स शुड फॉलो इट। दोनों को अलग अलग कर दिया कि भाई एक्सपर्ट्स जो है वो प्लान बनाएंगे और वर्कर्स जो है उसे फॉलो करेंगे। मतलब दोनों काम एक ही इंसान नहीं कर रहा कि प्लान भी एक इंसान कर रहा है, इम्प्लीमेंट भी एक ही इंसान कर रहा है। समझ में आया? जब एक्सपर्ट्स वो काम को प्लान करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सही तरीके से काम होता है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होते। और अगर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो काम और बेहतर तरीके से होगा। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग कर दो, मतलब दोनों चीज प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एक ही इंसान नहीं करेगा, दो अलग अलग इंसान करेंगे, ठीक है। Planning should be done by different group of people and implementation should be done by different group of people. जॉब एनालिसिस मतलब आप जॉब को एनालाइज करो कि काम क्या है। बेसिकली जॉब एनालिसिस में ये बताया जाता है कि आपका काम क्या है, आपका काम किस तरीके से, आपके काम में कौन सी चीजें आती है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की ट्रेनिंग होगी। जॉब एनालिसिस दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि काम क्या है, उसके लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत है, कौन सी आपके एक्सपर्टाइज की जरूरत है। और जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आपका काम में क्या क्या सॉरी, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कौन सी क्वालिटीज की जरूरत है हमें,
एक पर्सन में। तो जॉब एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके अंदर वो जॉब के बारे में बताता है, काम के बारे में बताता है, किस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, किस तरीके की स्किल्स की जरूरत है, काम क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती है जॉब एनालिसिस में। Job analysis is the best way to get work done speedily with the lower cost, increase productivity, and can reduce the cost of production after studying time study, मोशन स्टडी एंड फिटिक स्टडी। ये तीनों चीजें आपको पढ़ाई गई है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फिटिक स्टडी। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये चीजों को, ठीक है। जॉब एनालिसिस बेसिकली ये बताता है कि काम क्या है, किस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, कैसे काम किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो जॉब एनालिसिस में आता है। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। Standardization basically means a particular standard या particular criteria which is to be met. For example, while making smart TVs, you have to meet with things like it should be HD, high vision, then it should have the internet connectivity. All such things are included in smart TV. Nowadays, even Android TVs um, uh, are in the market, LCD, LED markets, which should be we should have all the qualities। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोको कोला का। जैसे कोको कोला की पता नहीं कितनी बॉटल्स अब तक बन चुकी होगी, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस यूनिट्स ऑफ कोको कोला हैज वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, पर किसी भी कोको कोला की बॉटल का स्वाद डिफरेंशिएट होता है? नहीं। आप कहीं से भी कोई भी कोको कोला पियो, उसका स्वाद जो है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होता। हर बॉटल में एक जैसे ही टेस्ट आता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन है। Standardization, simplicity a scientific process which should be done in advance. Equipment, time, situation of work, resources, etc. matters are considered for standardization. Scientific selection and training. Selection of workers should be done appropriately and scientifically. जब आप workers select करते हो तो बहुत scientifically और सही तरीके से करो। It is said ना, right person at right place. सही इंसान सही जगह पर allot करो, ठीक है। एक बेंचमार्क जैसे एजुकेशन, उसका, उनके स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, उनकी कितने स्ट्रेंथ्स है उनकी, व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी दे possess, all such things should be considered. Okay, selection of workers should be done appropriately and scientifically. For scientific standards, benchmarks like education of employees, skill, guts, physical strength, training, decision making power, which is not mentioned over here, but yes, decision making thing should be there, can be considered. Moreover, an employee should be assigned such work that must be accordingly to his education, study and skill. हर इंसान को आप वो काम दो जो काम वो करना चाहते हैं, वो काम अच्छे से कर सकते हैं, जिसके बारे में उन्हें पता है। There should be use of training to increase efficiency of workers from time to time. किस तरीके से उन्हें ट्रेन करना है वक्त के साथ, वो देखो। ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्ट शुड बी यूज टू नो देयर इंटरेस्ट। अलग अलग साइंटिफिक टेस्ट लो ताकि आपको पता चले कि उनके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। फिर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल विच मीन्स बेसिकली इट शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। इट शुड बी जो भी जो कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, scientific and technical base are not only considered but emphasize on low production cost is also there. Cost estimation and cost control methods should be considered. Cost estimation है, cost control methods है, ये सब आप पढ़ोगे आगे, वो सब कंसिडर करने चाहिए। और जो भी डेविएशन, जो भी गलतियां आती है, जो भी लिमिटेशंस आती है, वो सब चीजों को करेक्ट करो। मतलब इट शुड बी economical process, it should not be very expensive. Okay, it's a mental revolution for everyone, for owners and workers. Why it is mental revolution? Because we need to change our mindsets, we need to change our views, we need to change our ideas and beliefs mm, about our co-workers, about being an owner or being a worker. So there should be a good and positive attitude towards both of the parties, whether it is an owner or
इट्स अ वर्कर। हमें अगर आप वर्कर की तरह काम होता है, आपको ओनर को गलत तरीके से नहीं देखना है, और अगर आप ओनर हो तो आपको वर्कर्स को गलत तरीके से नहीं देखना है। दोनों का ख्याल रखना, दोनों का ध्यान रखना, ये हमारा फर्ज है। ठीक है, और इसीलिए उसे मेंटल रिलेशन कहा गया है, क्योंकि इट नीड्स अ बिट ऑफ चेंज, हमारी सोच के अंदर चेंज की बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए इट इज सेड एज मेंटल रेवोल्यूशन। अच्छा, कैसे लर्न करोगे आप लोग ये पॉइंट्स? विल लर्न प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो पहले तो वो साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए। कैसी साइंटिफिक मेथड? मैं एक सीक्वेंस आपको लर्न करवा रही हूँ, मीनिंग्स ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आप लोग को। साइंटिफिक मेथड जिसमें प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन अलग होना चाहिए। आपको उसका जॉब एनालिसिस करो, जॉब एनालिसिस करने के बाद आप स्टैंडर्ड सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद सिलेक्ट और ट्रेनिंग दो, फिर उसके बाद पैसों की बात आती है। Sorry, we didn't discuss financial motivation. I'll discuss. फिर financial motivation, then it should be economical, not very expensive, and mental revolution. Sequence में जाओ, देखो scientific method होना चाहिए जैसे planning और implementation, जिसमें हम job analysis करेंगे, जिससे standardization अचीव होगा, और selection, और बाद में आप select और train करोगे, उसके बाद आप उन्हें पे करोगे। तो financial motives, and it should be economical, and it should have the mental revolution. Okay, now over here, financial motivation, skilled workers should be given financial and other kind of motivation. Different kind of motivated wage schemes have been recommended for that. अलग 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 आपके जो मोटिवेशन, मतलब इस तरीके से वेजेस प्रोवाइड करो, इस तरीके से पैसा प्रोवाइड करो कि काम करने के लिए वो मोटिवेट हो, काम करना वो चाहे। ठीक है, फिर अडॉप्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेजेस सिस्टम मस्ट बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। आप इस तरीके से पैसा दो कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी देखे, कि एक एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है उतना उसको पैसा मिलना चाहिए। द वेज रेट शुड बी डिसाइडेड नॉट एज पर द स्पेकुलेशन बट शुड ओनली बाय साइंटिफिक स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं स्टडी कि स्पेकुलेशन मतलब आप कोई भी तरीके से आप सिर्फ अच्छा इसको इतने पैसे दे देते हैं, अच्छा इसको इतने पैसे, नहीं, वो क्या क्या काम कर रहा है, हर एक्टिविटी के पैसा उसको मिलना चाहिए, उसके हर मेहनत का उसको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन। फिर आता है, आप लोग को टेक्निक्स दिखाई गई है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें आता है टाइम स्टडी। सबसे पहला है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि जनरली कितना वक्त एक चीज में लगता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए नॉर्मली कितना टाइम कंज्यूम किया जाता है। नॉर्मली अगर सारे रिसोर्सेज है, सही तरीके से मशीन्स वगैरह सब कुछ है, तो नॉर्मल टाइम कंज्यूम्ड और नॉर्मल टाइम कितना लगता है वो चीज में, ये चीज देखने वाली जो चीज है उसे आप बोलते हैं टाइम स्टडी। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है? टाइम स्टडी मीन साइंटिफिक स्टडी बीइंग डन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्टेन पार्ट ऑफ टास्क। जैसे मैंने आपको कहा कि एक काम करने में, एक चीज प्रोड्यूस करने में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितने वक्त में वो चीज बन जाती है। वट एवर टाइम इज स्टडी टू फिनिश दिस वर्क इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। एज पर टेलर अ टास्क शुड बी फिनिश्ड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड इट्स केयरफुल स्टडी इज टाइम स्टडी। उस प्रॉपर टाइम में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, और वो केयरफुल स्टडी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। मतलब जिसके अंदर के इतने वक्त के अंदर अंदर आपका काम खत्म हो जाना, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। Okay, I hope it is very much clear to you all. Time study is useful for making optimum use of production equipment and achieving aims timely. Time study से आपको क्या पता चलेगा कि इतने वक्त में ये चीज प्रोड्यूस हो जाती है, तो आप प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो रिसोर्सेज का। ठीक है, I'll read it entirely for you again. Time study means scientific and study being done for time required to complete certain part of task. एक काम खत्म करने में कितना वक्त लगता है, वो पॉइंट वन। वॉट एवर टाइम इज डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। जो भी वक्त आप डिसाइड करते हो कि वो चीज खत्म करने में इतना वक्त लगता है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। As per Taylor, task should be finished in prescribed time and its careful study is time study.
टेलर के मुताबिक जो भी काम एक वक्त के दौरान जो खत्म करने के लिए जो टाइम डिस्क्राइब किया गया है, तो उसे हम बोलते हैं अ, अ, वो स्टडी जो है वो टाइम के रिलेटेड होता है और उसे हम बोलते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इज यूजफुल फॉर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड अचीविंग एम्स टाइमली। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर, जब आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर डिसाइड होता है तो ऐसा 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स दिए जाते हैं और 50 मार्क्स के लिए आपको टू आवर्स दिए जाते हैं। तो जो 80 मार्क्स और 80 मार्क्स के लिए जो 3 आवर्स असाइन किए जाते हैं, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो इस सोच के साथ बनता है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने में इतना वक्त लगेगा, इतने इजी क्वेश्चन कंप्लीट करने में इतना वक्त लगेगा, इस सेक्शन को कंप्लीट करने में इतना वक्त लगेगा। तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम है। फिर आप उस टाइम के साथ मैच कर सको ना कर सको वो आपकी एबिलिटी पर डिटरमाइन करता है। लेकिन आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होता है वो बेसिकली ये सोच के साथ बनाया जाता है। ठीक है, आपका पूरा पेपर टफ नहीं हो सकता, उसमें से कुछ हिस्सा टफ हो सकता है। How you allot the timing for completing a paper is known as time study। जैसे देखो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सपोज करें कि सेक्शन ए पूरा बहुत आसान है। सेक्शन ए कुछ ऐसा समझो कि आपके 5 मिनट कंज्यूम करता है। एमसीक्यू वाले, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, तो चलो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों चीजें हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स कंज्यूम कर रहा है वो। फिर सेक्शन बी जो है वो थोड़ा सा लेंदी है पर क्वेश्चन इजी है। सेक्शन सी इतना लेंदी नहीं है पर क्वेश्चन टफ है। अब वहां पे आपको डिसाइड करना है कि आपको ज्यादा वक्त कहाँ पर बिताना है। आप उसी चीज को फिगर आउट करते रह जाओगे तो बाकी जो आता है या जो आसान है आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। समझ में आया? तो जो एक पेपर बनाया जाता है वो इस सोच के साथ बनाया जाता है कि आप इतने वक्त में वो चीज कंप्लीट कर ही लोगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी एबिलिटी का प्रॉब्लम है। समझ में आया? देन इट इज मोशन स्टडी। मोशन मतलब मूवमेंट, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो जिस तरीके से मतलब जो लेआउट होता है आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो लेआउट होता है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ से हमारा जो रिसोर्सेज है वो हमारे मशीन तक पहुंचने में ही कितना वक्त लगा लेता है। समझ में आया? तो जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो रिड्यूस कर देना है। क्यों अननेसेसरी मूवमेंट रिड्यूस करना है? ताकि थकान ना महसूस हो, ताकि जो वर्कर है वो थक नहीं रहा है। ओके, दैट इज मोशन स्टडी। Motion study means method of removing wastage of resources due to unnecessary and unproductive movement of man and material। दोनों चीज का, जो अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है मैन का एज वेल एज मटेरियल का, वो हटा दो। If careful study is made when worker is doing movement at time of working, then industrial fatigue of worker can be removed by removing wrong process of movement। जो इंडस्ट्रियल फटीक मतलब बेसिकली टायर्डनेस, तो जो टायर्डनेस है वो आप हटा सकते हो क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो रहा, उसको जितना मूवमेंट की जरूरत है सिर्फ उतना ही एनर्जी वो लगा रहा है। समझ में आया? ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, तो वेस्टेज नहीं होगा, उसकी एनर्जी का वेस्ट नहीं होगा और उसका जो एनर्जी है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगी। It says that the industrial fatigue of worker can be removed by removing wrong process of movement and productivity can be increased. Main object of motion study is to find out method which results into minimum wastage of worker and its implementation। Let's take a simple example। आजकल कंसेप्ट स्कूल्स आ गई है। कंसेप्ट स्कूल्स जैसे आजकल जो है वहां पर ये ट्रेंड बढ़ गया है, ट्यूशंस का ट्रेंड बढ़ गया है। हर इंसान को ट्यूशन तो चाहिए। इट इज सेड कि ट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई है आजकल के जमाने में। ठीक है, हर बच्चा ट्यूशन क्लास जाता है, चाहे आप कितने भी बड़ी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पर बच्चा ट्यूशन तो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में कुछ कम से कम छः छः घंटे जैसा वो स्कूल में बैठ रहा है, 6-7 घंटे जैसा स्कूल में बैठ रहा है, घर आ रहा है, ठीक से खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, फिर वो एक ट्यूशन पे जा रहा है, फिर एक ट्यूशन से अगर वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते तो बाकी एंसिलरी सब्जेक्ट्स जो है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, उसके लिए वो कहीं और ट्यूशन जा रहा है। तो यहाँ पे उसका अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी यूज हो रहा है। अब बच्चा घर आके फिर आप एक्सपेक्ट करो कि वो बच्चा घर आकर भी पढ़े, घर आकर भी वो पढ़ाई करेगा, तो शायद पढ़ने बैठ भी गया ना तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा या उसके दिमाग में कुछ उतरेगा नहीं। क्यों? बिकॉज ही इज ऑलरेडी वेरी टायर्ड। उसका जितना एनर्जी का इस्तेमाल ले सकते थे आप वो पूरा ले चुके हो, अब इससे ज्यादा उसका एनर्जी आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो।
समझ में आया? तो आजकल कंसेप्ट स्कूल्स निकाले। कंसेप्ट स्कूल्स ये काम करती है कि आपको कुछ आवर्स का स्कूल देता है, फिर उसके बाद आपको सोने खाने पीने का खाना दिया, उसके बाद दे असाइन यू सम टाइम टू प्ले एंड मूव अराउंड, एंड एट दैट टाइम फिर आप उसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाता है, मतलब ट्यूशन क्लास जैसा दिया जाता है, फिर आपको पढ़ने का टाइम असाइन किया जाता है जिसमें आप बैठकर पढ़ते हो, फिर अगेन दे अलाउ यू टू प्ले एंड दे गिव यू सम स्नैक्स एंड देन दे लीव यू। मतलब एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा है। तो शाम में और फिर शाम में आप अपने घर वापस रिटर्न हो सकते हो। तो सुबह से लेके शाम तक आपका जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो हटा दिया गया। तो अब आप जितना भी पढ़ रहे हो, जितना भी मूवमेंट कर रहे हो, वो सब यूजफुल हो रहा है। समझ में आया? दैट इज मोशन स्टडी। नाउ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। वेज रेट सिस्टम अलग होनी चाहिए, ठीक है? I'll read for you. Differential wage rate study means wage given through the wage related motivation based on time of work to the worker. Frederick Taylor favored this motivational wage method. Each worker working in factory have different work efficiency. हर इंसान के काम करने की काबिलियत अलग अलग होती है। हर इंसान एक जैसा काम नहीं करता। कोई इंसान बहुत काम करता है तो कोई कम काम करता है। Considering this fact, efficient workers should get more wage and worker having less efficiency should get the lower wage. तो जिस इंसान के पास कम एफिशिएंसी है उसे कम पैसा मिले, और जिसके पास ज्यादा एफिशिएंसी है उसे ज्यादा पैसा मिले। टर्म्स ऑफ मोर प्रोडक्शन। Now, here it says, considering this fact, efficient workers should get more wages and worker having less efficiency should get lower wage in terms of more production. Considering this fact, Frederick Taylor has given different wage rate system. Different wage rate system ये कहता है कि हर इंसान को एक तरीके से वेजेस ना दो, हर इंसान को अलग अलग वेजेस दो। जो इंसान ज्यादा मेहनत करता है उसे ज्यादा वेजेस दो, जो इंसान कम मेहनत करता है उसे कम वेज दो। समझ में आया? दैट इज डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। एक जैसे वेजेस हमें देने नहीं है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। दैट इज टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल of scientific management. I hope it is very much clear to you all. In next class, we'll study about principle of management by Henry Fayol. Thank you so much, students. Have a very good day. Stay safe and happy.